السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وفات کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ سیرہ کے بارے میں بھی، یعنی کہ پیدائش کے بارے میں بھی اور وفات کے بارے میں۔ وفات کے بارے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت، سورۃ آل عمران کی آیت کھلی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ سب بہنیں درود ابراہیم پڑھیں مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ انشاءاللہ تعالی ہم کیا دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے حوالے سے ہے جی، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے نا، جی تو ربیع الاول کے حوالے سے یہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جشن عید مبارک، عید النبی جو ہے، عید النبی، اس کے بارے میں بھی جشن منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، کس چیز کا جشن منانا چاہیے؟ موت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر چلے گئے اور صحابہ کرام کے اوپر سکتہ جاری تھا اور ہم کیک کاٹ رہے ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر گئے اور صحابہ کرام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی تھی جی اور کہنے لگے کہ جو کوئی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وفات پا چکے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، یعنی کہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتنے ان کو صدمہ ہوا تھا، اتنا صدمہ ہوا تھا۔ آج ہمیں صدمہ ہے؟ نہیں، کیا ہے؟ خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے خوشیاں ہیں جی۔ منا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ مشن ہونا چاہیے، جشن نہیں، جشن نہیں۔ اللہ کے نبی مشن چھوڑ کے گئے ہیں، جی مشن چھوڑ کے گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن نہیں چھوڑ کے گئے کہ ہم جشن خوب منائیں۔ اور پھر کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کو ایک ایک بات بتا دی کہ ان کے پیچھے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز قرآن میں نہیں چھوڑی جس کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہمارے لیے باقی رہ جائے کچھ کرنے کے لیے، کہ ہم سوچیں کہ ہاں یہ بات رہتی تھی کہ دین میں تو پوری نہیں تھی تو ہم نے آج آ کے پوری کر دی ہے۔ یہی بتا رہے ہیں نا کہ ہمارا دین نامکمل دین تھا اور ہم نے 4 صدیاں بعد مکمل دین کرنے کا سوچ لیا کہ عیسائیوں نے کس قوم کی یہ نکالی ہے، کس قوم نے یہ کیا تھا؟ کوئی بہن بتائے تھی کہ برتھ ڈے منانا کس قوم سے شروع ہوا؟ عیسائیوں نے عیسائیوں کی۔ عیسائیوں نے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منائی، حالانکہ وہ کہا جاتا ہے بہت سارے ان کے مناتے نہیں ہیں کیونکہ ان میں بھی اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ جی کچھ جو جنوری میں مناتے ہیں، کچھ یعنی کہ ان میں بھی اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کسی رومن بادشاہ کی برتھ ڈے کا دن تھا تو اس نے سوری باجی جی، ہمارے لوگ بھی تو برتھ ڈے منا رہے ہیں نا، برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ وہ ہمارے عید لوگ بھی تو برتھ ڈے منا یہی رہے ہے ہیں نا کہ حضور برتھ پاک ڈے صلی کو اللہ علیہ منا وسلم رہے کی۔ ہیں، لیکن اصل صدمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس وقت اسلام کمپلیٹ ہو چکا تھا، عیسوی چھوڑ کر ہجری کیلنڈر شروع ہو چکا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ وہ 12 ربیع الاول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں
कोई शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को ही हुई है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में ना तो उस वक्त मशरकीन मक्का कोई कैलेंडर फॉलो करते थे, और उस वक्त इस्लाम भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है, तारीख पैदाइश के बारे में 5 या 6 रवायात मुख्तलिफ आती हैं। 9 का भी कहा जाता है, 12 का भी कहा जाता है, 10 का भी कहा जाता है। फिर वेरी अर्ली, यानी कि जब रबीउल अव्वल शुरू होता है, यानी कि इतना इख्तलाफ पाया जाता है, इतना इख्तलाफ पाया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये भी अगर गलत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ही नहीं है कि ये किया जाए। अगर आपने करना होता तो आप खुद करते, महफिलें मनाते, करते, जुलूस निकालते। जिस मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा के गए, वफात पाई जिस दिन, उस दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर में जलाने के लिए दिया जलाने के लिए तेल नहीं था, तो हाँ, नेबर से उधार लेकर दिए में जलाया हुआ था। आप क्या कह सकते हैं फिर? हम्म कि बर्थडे केक काटने में उनके पैसे होंगे उनके पास? हाँ, जिनके पास दिया जलाने के लिए पैसा नहीं था, ये नहीं थी बात कि उनके पास आया नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवांगरी को पसंद किया था। अल्लाह ताला ने दिया था चॉइस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया था कि मैं भूखा भी रहूं और किसी दिन सैर होकर भी खाऊं। और कितना सैर होकर कितना खाते थे, क्या सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? क्या फरमाया, कितना खाना है? भूख रख कर भूख रख खाना कर है, खाते हैं। एक एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, पानी और और एक हिस्सा तीसरा भूख। हिस्सा हवा के लिए, जी। हजम करने के लिए। हम कितना खाते हैं? हाँ, पेट पेट भर भर कर। पेट भर के। पेट भरकर, सैर होकर, हम कहते हैं सैर होकर खाना खाना, सैर होकर खाना खाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया था, फरमाया था कि सही मुस्लिम में है, मिशकात में भी है, कि पीर वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। और इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। और इसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, पीर वाले दिन और जुमेरात के दिन। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस दिन मैंने, यानी कि इन दोनों दिनों में नामाए माल ऊपर जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा नामाए माल उस वक्त ऊपर जाए जब मैं रोजे की रोजे हालत की में हालत हूँ, में। जी। यानी कि रोजे की हालत में हूँ। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में चिराग नहीं थे उस वक्त। बारिश होती थी तो कीचड़ इतना हो जाता था कि लोग जूतियों समेत नमाज पढ़ते थे, पाँव गीले हो जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जब उनको कहा जाता है ना कि शबे कदर नसीब हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के माथे पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि सजदे पे गए होंगे, तो गीली मिट्टी किसका निशान होती है? सर पे, सजदे, सजदे की जगह पे गीली मिट्टी थी, गीली मिट्टी पे सजदा किया था, क्योंकि बारिश हुई हुई थी। अब एक आम चीज है कि जब किसी की बर्थडे भी, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की बर्थडे, मैं कोई बच्चा पैदा होता है 1 तारीख को, और अल्लाह न करे कि उसी तारीख के टाइम उस इंसान की मौत भी वाक़या होती है, तो आप क्या करेंगे? उस दिन क्या करेंगे? मैं चलो 12 रबीउल अव्वल मान लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल ही पैदाइश है, और 12 रबीउल अव्वल ही उसमें तो कोई शक नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल ही है वफात का दिन। तो आप क्या करेंगे? जश्न मनाएंगे
नहीं जाके जश्न सो जश्न तो नहीं जाके मनाए फिर कि हाँ जी जाके दुआएं करेंगे सो के। जी दुआएं मेरा बेटा जी उसी दुआएं दिन करेंगे। पैदा हुआ था इतवार को, और इतवार को ही फौत हुआ था, तो क्या उस दिन में वो अब जश्न तो नहीं बना सकती? हाँ, जी मैं तो बस आप सोच सकते हैं फिर दुआएं जी, करते हैं। है ना। आप दुआई आप करती हूँ। लोगों के सामने एग्जाम्पल मौजूद है, तो हम चलो कुछ भी ना लें, हम इतना तो सोच लें कि जब बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी इसी दिन होगी, हुई थी, तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। इस महीने में सीरत को पढ़ा जाए, इस महीने में सुन्नतों को और उजागर किया जाए, इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भूली भुलाई सुनते हैं उनको सामने लोगों के लाया जाए, लेकिन सही हदीस से, सही सुनते, लोगों की गढ़ी हुई नहीं, बात वालों की, जहाँ कोई मौजू हदीस नहीं, ज़ईफ हदीस नहीं, वो सुनते जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और सही बुखारी में, सही मुस्लिम में मौजूद है। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया दिया ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हुस्ना है, हमारे लिए बेहतरीन नमूना है फॉलो करने के लिए। तो हम बेहतरीन नमूने को छोड़कर हम दूसरी कौमों के नमूने फॉलो कर रहे हैं, जी है ना। वो तो अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, जो भी बर्थडे मनाए मनाए, क्योंकि उन्हें उन्हें तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तो वफात अभी नहीं हुई ना, जी तो हमारे नबी की तो वफात भी हो चुकी है और उसी दिन हो चुकी है, और हम उसी दिन नहीं कह सकते पक्का कि वो पैदाइश हुई थी कि नहीं। इसका याद रखें कि मैं नहीं कह रही इसके दिन की कि मस्ट भी इसी दिन पैदाइश हुई थी। मैं आपको एक जवाब दे रही हूँ सोचने का कि अगर पैदाइश और वफात मान भी लें कि एक दिन ही हुई थी, तो आप क्या करेंगे? पैदाइश मनाएंगे कि नहीं नहीं, वफात के ऊपर उनके उनके लिए दुआएं करेंगे? उनके लिए हम क्या दुआएं करते करेंगे होते हम। हैं, कोई वफात पा जाए तो हम उसके लिए सदका जारिया बनने की कोशिश करते हैं उस जी दिन, जी खास जी कर कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में दें, जी हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक ही को ही अपना लें, जी सारों क्यों नहीं तो एक को ही अपना लें। जी फॉर एग्जाम्पल आप मिसवाक करना शुरू कर दें, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था मिसवाक के बारे में, और हर वक्त साथ में सफर में और हजर में साथ रखते थे और सरहाने के नीचे रख के सोते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझ यानी कि आप लोगों का भारी ना हो, जब भारी ना लगे, तो मैं आप लोगों को हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म दूं, मतलब मिसवाक करने के लिए कहूँ, यानी इतनी तरजीह दी मिसवाक करने को। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, और फरिश्ते भी आते हैं और मुंह की बदबू जो होती है फिर फरिश्तों को भी अच्छी नहीं लगती, मिसवाक जो है वो बदबू भी खत्म कर देती है। आजकल तो ब्रशों ने ले ली है ना, मिसवाक का रिवाज खत्म कर दिया, और हदीस एक सुन्नत को हमने पशे पिस डाल दिया। तो वो मिसवाक को ले लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करते थे, बिस्मिल्लाह को ले लें, हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह। आपको मैं बताऊं, जब छोटा बच्चा भी होता है ना, मेरा नवासा 6 महीने का है, तो उसकी माँ बिस्मिल्लाह पढ़ती है ना दूध से देने से पहले अपना, तो वो जो है अब बिस्मिल्लाह किसी और काम के लिए पढ़ती है ना, तो वो कहता है मुझे दूध दो, यानी कि आप बिस्मिल्लाह दूध के लिए पढ़ती है जी ना, हाँ जी वो तो वो कहता है कि दूध का टाइम हो गया जो बिस्मिल्लाह हाँ, पढ़ी वो है। उसने बस उसके मुझे माइंड यही है कि मैं दूध से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, मुझे दूध मिलेगा अब बिस्मिल्लाह हाँ, पढ़ी तो है। वो बस भी आप दूध पहला, तो वो तो मेरा आज कह दूध रही थी मिलेगा कि हम बेटी मेरी के अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी कि बिस्मिल्लाह हर चीज से पहले पढ़ते हैं। तो वो तो 6 महीने का बच्चा है वे अभी छोटा है ना, हमसे ना, समझ नहीं। तो लेकिन छोटे बच्चे को ही तरबियत दी जाती है ना, जी उसे जी इतनी बचपन बात पता चल गई कि ये मेरी रूटीन में है कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और हम इतने बड़े बड़े हो गए तो हमारी रूटीन में बिस्मिल्लाह नहीं आई, यानी कि एक छोटा बच्चा भी सीख जाता है जब उसको उसको सिखाया जाए। हम सब भूल जाते हैं कई दफा ना, जी जी बाल कंघी करने से पहले, कपड़ा पहनने से पहले, जी या किस किस चीज से पहले, हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह। आप कोई चोरी करने लगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे? नहीं नहीं। तो चोरी वैसे करनी चाहिए, नहीं। नहीं वो तो पहले ही गुनाह है। हाँ हाँ जी जी
तो कोई चोर चोरी करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, जी कोई कत्ल करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, क्योंकि वो उसको ज़िबा नहीं करने लगा खाने के लिए, जो उसको बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। तो बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है ना, जी जी सिर्फ बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है ज़िबा करने का, पूरा नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता। तो हम किधर किधर थे और किधर चले गए हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला का इरशाद हम पढ़ते हैं, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। आले इमरान, सूरत आले इमरान 185 नंबर की है आयत। हर जान मौत का मजा चखने वाली है। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बच गए मौत का मजा चखने से? नहीं नहीं, क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मौत की बेहोशियां जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई, उसके बाद मैंने जान लिया कि कोई भी नहीं इनसे बच सकता। इस इतनी सख्ती जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत पर आई, क्यों? क्योंकि उम्मतियों को बताना मकसूद था, उम्मतियों को समझाना मकसूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कपड़ा भिगोते लाते सर पे। और बीमारी कब शुरू हुई? एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सर में दर्द थी और कहती, हाय मेरा सर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाय मेरा सर। बस उस दिन से बुखार शुरू हुआ, बीमारी शुरू हुई और वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त पड़े तो हमारे ये भूल जाएं हम खुशियां मनाना। क्योंकि हम कब खुशियां मनाते हैं? जब हमें पता नहीं होता पीछे हकीकत का। तो हम खुशी बराए नाम खुशी मना रहे हैं, कोई पता नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, दूसरा अरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान वा यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सूरत ar-रहमान जी आपके सामने है, सूरत नंबर 26 है और आयत नंबर 27 है। जमीन पर जो है सब फना होने वाले हैं। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए फना? हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में भी कि अगर अब अल्लाह के यानी अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा जाएं तो क्या तुम दीन को छोड़ देंगे, छोड़ दोगे? तो वो फौत हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाई है, उन्होंने मौत का मजा चखा है। ये हमारा ईमान में होना चाहिए। जमीन पर जो है सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है बाकी रहेगी। क्योंकि क्यामत के दिन के बारे में, दोबारा उठने के बारे में भी अल्लाह ने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मैं उठूंगा तो देखूंगा सबसे पहले मैं, यानी कि मैं जब देखूंगा, उठूंगा और देखूंगा कि यानी जीना है ना, बाद में मरने के बाद जीना, तो जब मैं जीऊंगा दोबारा तो मैं देखूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले थे वहां पे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जब वो बेहोशी आई थी ना, बेहोशी आती है जब एक बेहोशी होती है ना, जब क्यामत आती है तो बेहोश हो जाएगा ना, सभी बंदे बेहोश हो जाएंगे ना। हर बंदा ही ऐसे हो जाएगा जैसे मौतारी होगी उन पर, सब बंदे ही खत्म हो जाएंगे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो भी आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है अर्श का कोई उसके बारे में मुझे याद नहीं है, मैं बताऊंगी नहीं, हदीस पक्का पक्के अल्फाज नहीं याद, तो इंशाल्लाह फिर सही कभी। अब इस अल्लाह ताला की कलाम क्या कह रही है? अल्लाह ताला की कलाम है ना ये कुरान, हम क्या पढ़ रहे हैं? कलाम ही है ना पढ़ रहे। जी जी तो जी ये कलाम है अल्लाह ताला की। जब अल्लाह ताला की कलाम फरमा रही है कि हम, सबसे पहले कलाम का मुझे याद आया
کہ اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا ہوا ہے. یہ جی قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی کا کلام. کلام ہے، اللہ کے ورڈز ہیں، جی اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اللہ نے اس نہیں. کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہتے ہیں قرآن کو، وہ بہت بڑے شرک میں ہیں، یعنی کہ وہ شرک کرتے ہیں. اور جو مخلوق سمجھتے ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ہم سنتے ہوتے ہیں، ایک کلاس چل رہی ہے، تربیہ کلاس، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی شروع کریں گے. وہ اس میں انہوں نے بتایا کہ مخلوق جو ہے، جو بندہ قسم کی بات ہو رہی تھی، تو قسم جو کھاتا ہے انسان، بہت سارے لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں جی قرآن مسجد میں لا کے اٹھانا ہے، قسم اس کی کھاتے ہیں نا، پھر قرآن کی قسم، قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں. جی تو اگر وہ اللہ کی مخلوق اسے سمجھتے ہیں اور پھر وہ قسم اٹھاتے ہیں تو وہ شرک ہے. اگر وہ اللہ کی کلام اسے سمجھتے ہیں اور پھر اس کی قسم اٹھاتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس سے لیس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی قسم، اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اللہ کی صفات جو ہے نا، جب میں قسم کا فور ایگزامپل میں قسم کھاتی ہوں اللہ غفور الرحیم کی، میں قسم کھاتی ہوں اللہ رحمان اور رحیم کی، ہے نا. جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں. تو واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک اصغر اور شرک اکبر سے بچائے، ہے نا. آمین ثم آمین. تو یہ شرک ہو جاتا ہے تو ہر یہ پھر شرک ہو جائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کو اللہ کی مخلوق سمجھنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں جو ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں، آگے وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ مؤمنون میں، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. سورۃ مؤمنون ہے، آیا 16 ہے. اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جائے گا. اور سب کون ہے؟ سب میں سب 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 ہی ہیں، سب سب انسان ہیں، ہمارے پیارے باپ آدم اینڈ پیاری ماں حوا علیہ السلام نے. ٹھیک ہے. نیز ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. سورۃ سجدہ آیت 11. کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ جو آیات آ رہی ہیں کیا دے رہی ہیں ہمیں؟ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے موت کے لیے ایک وقت متعین ہونے کی خبر دی ہے جس میں کوئی تقدیم و تاخیر ناممکن ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. سورۃ منافقون ہے، آیت نمبر 11 ہے. اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا. یعنی کہ پھر چاہے وہ پیغمبر ہو، پیغمبروں کو آپ کو پتا ہے نا کہ ان کو چوائس دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ موت کی مرض میں جب مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو چوائس دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حقیقی سے ملنا پسند کیا تھا. یعنی میں اپنے مال کے حقیقی سے ملنا پسند کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بارے میں حدیث آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، جب یہ زبان سے الفاظ نکلے تو ہم سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن آخری ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دن سمجھ گئے تھے
کہ اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब है, जब अल्लाह ताला ने अरशाद फरमा दिया था कि अकमलतु लकुम दीनकुम, वो जो है ना, लाकुम दी है ना, वो कि आज आज वली आज मैंने हाँ तुम्हारा दिन पूरा जी होगा। हाँ दीना जी दीना आपने हमारा मुकम्मल कर दिया है तुम्हारा, हाँ तो जी, हाँ जी नेमत पूरी कर दी है नेमत तुम्हारे पूरी कर ऊपर, दी हमने। और दीन इस्लाम के तौर पर दीन तुम्हारा चुना है। तो जी यानी वो अकमलतु लकुम दीनुकुम की जब आयत उतरी थी, और हज्जे अकबर के दिन, यानी हज के दिन, अकबर हमारा जुम्मे वाला हज नहीं है, सिर्फ हर हज हज अकबर है, तो वो हज असगर उमरा को कहते थे। तो अल्लाह आलम, तो उन्होंने उस वक्त समझ लिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कुछ दिन यानी कि कोई महीना खंड ही रहे थे जिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद, क्योंकि मिशन पूरा हो चुका था, मिशन पूरा हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पूरा हो चुका था हाँ जी दीन जो मिशन देकर अल्लाह ताला ने जी भेजा था वो पूरा वो हो पूरा गया, हो चुका था पूरा हो चुका था, यानी काम तमाम हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से उठा लिया गया। सूरत अल अराफ भी ऐसे ही है कि वलिकुल्ली उम्मतिन अजल फाइजा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, सूरत अल अराफ 34 है। हर हर ग्रोह के लिए एक मियाद मुअय्यन है, सो जिस वक्त उनकी मियाद मुअय्यन आ जाएगी, मुअय्यन जनी है, क्या है मुअय्यन, मुकर्रर, मुकर्रर उस वक्त एक साथ एक घड़ी जनी ना पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। कोई भी कौम हो उनका वक्त मुकर्रर है, वो आगे पीछे नहीं बढ़ सकते। अरशाद फरमाया आगे, ठीक है, मजमून अल्फाज के मामूली फर्क से सूरत यूसुफ की आयत है, यूनुस की आयत है, आयत नंबर 49 में भी बयान हुआ है, नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत, वाक्या सूरत वाक्या 60, हम ही ने तुम्हें मौत को मुतय्यन कर दिया है। तो जनी मौत आके रहनी है, मौत का वक्त मुकर्रर है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पे सूरत जुमर में भी आया है, ये जरी मौत की आयात है, तो कैसे जुटला सकते हैं मौत को, कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत नहीं आई, आई थी, ये जी पक्का यकीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई थी, आई थी अल्लाह के आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और किस दिन आई थी, किस डेट पे आई थी, 12 12 12 रबीउल 12 अव्वल। रबीउल 12 अव्वल। अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त, और उनकी मौत नहीं आई वक्त, और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी नींद के बाद कब्ज कर लेता है, वक्त कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका है उन्हें तो रोक लेता है, और दूसरी रूहों को एक मुकर्रा वक्त के लिए छोड़ देता है। गौर करने वालों के लिए इसमें यकीन बहुत सी निशानियां हैं। ये क्या है, ये रात की वक्त ही है जब रात को ये होते जब हैं जी रात होती है तो जी मौत आती जी है, आती है हाँ जी मौत कहते आती हैं कि है। मौत तो हाँ जिनकी जी जिनकी मौत आ चुकी होती है ये उसके लिए क्या है, उनका वक़्त मुकर्रर हो जाता है हाँ जी वक्त पूरा हो मुकर्रर गया हाँ होता जी है ना। और जिनकी जा नहीं आती वो उनको अल्लाह उनको ताला लौटा दिया जाता है, जी रूह को उनको लौटा लौटा दिया जाता दे है जी जिसमें, और जी हर रात हो रहा है जी। जी जी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा दिया गया था, बता दिया गया था कुरान में कि मौत ये रूह के बारे में अगर पूछते हैं ना, तो बहुत कम बताया गया है, बहुत कम इल्म है लोगों को दिया गया रूह के बारे में। अल्लाह की तरफ से है जी, बता दें उन्हें कि अल्लाह की तरफ से है। जहां तक के सूरत अल नाम की आयत 61 है, जहां तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है, उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं और जरा कोताही नहीं करते। तो जो मौत का फरिश्ता होता है वो जान लेता है, क्योंकि उसी को मुकर्रर किया गया है। साथ में जो फरिश्ते होते हैं आए हुए, अगर जन्नत के आए हुए हैं या जहन्नम के आए हुए हैं, तो जना कि जैसे ही इंसान होता है वैसे ही फरिश्ते आते हैं, वो फौरन उन मलकुल मौत के हाथ से रूह को ले लेते हैं, फिर फौरन उठा लेते हैं। तो उसके साथ जो भी फिर जन्नतियों वाला या दोजखियों वाला सलूक होता है, लेकिन कब्ज उसने करनी है जान, जो मुकर्रर है।
جہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، اور آگے میں بڑھتی ہوں، پڑھ لیا جی، یہ پیج آگے پیچھے ہو رہی ہیں، ان کا کچھ ہو نہیں پا رہا۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم آ چکا ہوتا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی میں نے پڑھا تھا، لیکن بار بار وہی پیج آ رہا ہے۔ جہاں تم بھی ہوگے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ میں آیتیں نہیں پڑھ رہی، اب آپ کے سامنے لمبا بہت ہو جائے گا، آپ کے سامنے موجود ہیں آیتیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اور آیتوں کے نمبر بھی دیے گئے ہیں، یعنی کہ میں ریفرنس کے ساتھ دے رہی ہوں آپ کو۔ قرآن کی آیات ہیں کہ آگے آیت ہے سورۃ آل عمران کی، کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ ہٹا سکتے ہیں کسی کو؟ آپ کا نہیں بہت نہیں پیارا ہو اور آپ نہیں کہیں کہ بات ابھی نہیں جانا، نہیں پھر تو ہر نہیں بندہ ہی کبھی ہٹا بھی دے، کوئی نہیں بھی نہ جائے، کسی کا پیارا نہ جائے، کسی کا جوان نہ جائے، کسی کا بچہ نہیں، نہ جائے، کسی کا جی بوڑھا نہ جائے، کوئی نہیں جی جانے دے گا، ہاں جی کوئی نہیں جانے دے گا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 16 ہے، کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی نہ کام نہ آئے گا، یعنی بھاگ نہیں سکتے تم۔ آگے ہے، کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی۔ موت سے متعلق ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، اس کو روک نہیں سکتا۔ انسان کی موت کا وقت متعین ہے، انسان کا دن، جگہ، وقت اور جس طرح آنی ہے وہ سب مقرر ہے، جہاں پہ آنی ہے وہ مقرر ہے۔ نیند موت کی بہن ہے کہی گئی، اور اس کی ایک ادنا سی شکل ہے موت کی۔ موت آخری منزل نہیں بلکہ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ موت ایک قطعی حقیقت ہے۔ اے، جی پھر ہم نے پیچھے پڑھی ہیں دلائل اس کے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو کر سامنے آ گئی کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ جس قانون سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مستثنی نہیں ہے، لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ آج کیا کر رہی ہے۔ افسوس کس چیز کا ہے؟ امت مسلمہ آج کیا کر رہی ہے؟ امت مسلمہ کے اندر چند ایسے گمراہ فرقے پیدا ہو گئے ہیں جو انبیاء اور رسولوں کی موت سے انکار کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اس سے آگے بڑھ کر اولیاء و صالحین اور بزرگان دین کی موت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس موضوع پر خصوصی توجہ دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب توجہ خوشیوں پر ہو نا تو غم کی توجہ بھول ہی جایا کرتی۔ موت ہر ایک کو توجہ ہونی چاہیے نا موت کی طرف۔ جی موت ہر قرآن وقت کے یاد علاوہ رکھنی، ہاں جی قرآن کے دلائل کے علاوہ انبیاء کے قرآن میں انبیاء کی موت پر جو خصوصی دلائل موجود ہیں انہیں جمع کیا تاکہ غلط فہمی اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے اور حق نکھر کر سامنے آ جائے۔ پھر اب کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ میں سے تو کم نہ کریں نہیں ہے، جی کہ نہیں موت جی پیغمبروں کو بھی آئی ہے، موت سوائے آنی ہے، حضرت ہاں عیسیٰ علیہ جی جی السلام کے ابھی مقرر نہیں آئی۔ ان کو بھی آنی ہے لیکن ابھی نہیں آئی۔ جی جب ہم بول رہے ہیں تو ابھی نہیں آئی۔ یہ ہمارا تو پہلے بھی یقین ہے، ہاں ہم قرآن جانتے ہیں۔ مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت ذکر فرمائی ہے، ان کو بھی موت کے وقت وصیت فرمائی ہے۔ جی انہوں نے کہا کہ جب موت آنے لگی یعقوب علیہ السلام کو نا، جی تو یہ پھر ان کی وصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت آپ کے سامنے موجود ہے۔ کیا تھی؟ یا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام وہ اولاد جن کو اسلام کی حالت میں مارنے کی انہوں نے وصیت کی، ان میں انبیاء بھی تھے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میری اولاد میں اسماعیل اور اسحاق نبی ہیں اور انہیں موت سے دوچار ہونا ہی نہیں ہے؟ اور اگر انہوں نے معلوم ہونے کے باوجود ایسی بات کہی تھی تو ان کی اولاد میں سے انبیاء نے ان کو ٹوکا کیوں نہیں؟
یعنی بعد میں کیوں نہیں بتایا کہ انہوں نے کیوں ایسی بات کہی؟ کیا انبیاء غلط بات سن کر خاموش رہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی یہ بات کہے کہ یہ وصیت صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو انبیاء نہیں تھے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے تو دونوں بیٹے نبوت سے سرفراز کیے گئے، کیا ان کا کوئی تیسرا بیٹا بھی تھا جسے نبوت نہیں ملی تھی؟ اگلی آیت انبیاء کی موت پر اس سے بھی واضح دلیل ارشاد ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون۔ کیا تم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا نہیں پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا تو اللہ کیوں فرماتے کہ کیا اس وقت تم موجود تھے؟ جی یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہی بھی نہیں ہوئے تھے ابھی، تو موجود کہاں ہوتے؟ جی اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی جی غائب کے علم کا نہیں پتا۔ آج ہم غیب کیا اللہ کہتے تعالیٰ ہی ہیں؟ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جو بھی مانگ لیں وہ دیتے ہیں، وہ غائب کا علم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی، جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا، انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ میرے بعد کیا پوچھا تھا؟ ہم لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ فلاں میرا مال فلاں کو دے دینا، زمین اس کو دے دینا، جی وہ کر لینا، بہنوں کو بھی دے دینا یا ان کو نہ دینا، جو بھی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کرو گے ہاں جی جی ہاں جی انہیں فکر ان کے توحید کا لاحق ہوا تھا، جی تو پھر تو نہیں جاؤ گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق جی اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، بہت کی جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ ان کا جواب تھا، اور وہ رہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ مریم، سورۃ مریم ہے۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ ویری کلیئر یہ آیت ہے کہ جس دن وہ مرے۔ کیا ہے پھر؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہم نعوذ باللہ کہہ سکتے کہ باقی انبیاء کو موت آ گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آئی۔ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ نہیں 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 کہہ سکتے۔ نہیں کہہ یہ سکتے الحمد ہم کسی نبی، کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ لا جی نفرق بین احد من رسلی، جی ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جی اور پھر ہم تو ایمان کی صفتیں بھی پڑھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے؟ اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، جہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی کو رسول بھیجے گا ہی نہیں، یعنی کسی کو بھی نہیں رسول بنائے گا اللہ۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے، اور اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا، اللہ بھی ان کی گمراہیوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو شک و شبہ کرتے ہیں اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں پھر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہی کی زبانی ارشاد ہے، انہیں کیا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ انہوں نے خود فرمایا تھا نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کب؟ جب پیدا ہوئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے، ہاں جی پنگوڑے میں فرمایا تھا ہاں جب جی لوگوں نے سنا تھا۔ جی اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں، سلام ہی سلام ہے۔ تو ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انبیاء کو موت آئی، حقیقت جی ہے، دلیل بن سکتی ہے، جی بالکل۔ جس میں عزیر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی دیکھیں، اور ان کا نام نہیں لیا گیا، ان کا نام نہیں لیا گیا تھا، صرف ایک بندے کا بتا دیا۔
कि से जे जा उस शख्स के मानद जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे मौत दे दी 100 साल के लिए, फिर उसे उठाया। सही बुखारी व मुस्लिम में भी हदीस मरवी है कि मलकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया। जब वो उनके पास आया तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया जिससे उसकी आंख फूट गई। किसको मारा था थप्पड़? रिश्ते का। फरिश्ते को, मलकुल मौत को। जी आपको पता है इन्होंने मुक्का मारा, गोंसा मारा था तो एक जी बंदा मर गया एक था। बंदे को जी मार दिया था जी जनी इतने ताकतवर थे। जी कहते हैं वो लेड उठा दिया था उन्होंने, जो कितने बंदों की जमात ने उठाया था पानी से, पानी के कुएं से। जी वल्लाहु आलम। तो जहाँ वो उन्होंने फरिश्ते की आंख फोड़ दी, फरिश्ता जी अपने रब के पास वापस गया और अर्ज किया आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मौत नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस जाने का हुक्म दिया और फरमाया उनसे कहो कि अपना हाथ बैल की पुश्त पर रखें। उनके हाथ के नीचे जिस कदर बाल आ जाएंगे हर बाल के बदले 1 बरस उम्र बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मेरे रब फिर क्या होगा? यानी फिर क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया फिर मौत ही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर अभी दे दो। यानी कि जब फिर भी मौत ही है इतने साल जीने के बाद तो अभी दे जी दो। फिर कबूल किया तो चॉइस दिया किन को? पैगंबरों को सिर्फ। लेकिन हमें कोई चॉइस नहीं है। वफात से मुतल्लक अम्बिया की खसूसियात है। अम्बिया इकराम और रसुल आज़ाम अगरचे मौत से दो चार होने में बाकिया इंसानों की तरह हैं, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी रसालत का ताज पहनाकर बाकिया इंसानों से उन्हें मुमताज फरमाया, इसी तरह मौत से मुतल्लक भी अल्लाह ताला ने उन्हें कई इम्तियाजात से सरफराज फरमाया। यानी कि बहुत सारी मुख्तलिफ उनके साथ बातें हुई जो आम इंसानों की मौत के वक्त नहीं होती। इसी तरह मौत से मुतल्लक भी अल्लाह ताला ने उन्हें कई इम्तियाजात से सरफराज फरमाया। मौत के वक्त इख्तियार दिया जाना, नंबर 1, मौत के वक्त हर नबी को इख्तियार दिया जाता है कि वो दुनिया में बाकी रहे या सफर आखिरत इख्तियार कर ले। लेकिन अम्बिया कराम हमेशा इनाम याफ्ता बंदों की रफाकत और आखिरत को इख्तियार करते हैं। यानी किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मुझे और वक्त चाहिए जिंदा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी किस्सा आप लोगों को पता ही है। मौत के वक्त हर नबी को हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सुना करती थी कि किसी नबी को उस वक्त तक मौत हरगिज नहीं आती जब तक उसे दुनिया और आखिरत के दरमियान किसी एक के इंतखाब की दावत ना दी जाए। चनाचे मैंने इस बीमारी में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, जो मैंने पहले बात बताई लेकिन अब हदीस से साबित है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई थी। बेशक गो अल्फाज मेरे थे यूं कि तू नहीं थे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना जबकि आपकी आवाज सख्त हो गई थी जिन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं समझ गई कि आपको आपको इख्तियार दे दिया गया है और आपने इनाम याफ्ता लोगों की रफाकत को इख्तियार का फरमा लिया है। सही बुखारी में मुस्लिम। यानी कि क्या आवाज आई, क्या सुन गया? जी बात अंबिया का अपनी कब्रों में जिंदा होना, यानी कि अपने अपने ख्यालात दुरुस्त कर लें। अंबिया अलैहिस्सलाम का अपनी अपनी कब्रों में जिंदा होना। अंबिया का अपनी कब्रों में जिंदा है, सलात पढ़ते हैं, मसनद अबी यल्ला वगैरह। सिलसिला सही है, शेख अलबानी ने सही करार दिया है इस हदीस को। यानी कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, लेकिन मौत तो उनको आई है ना, जी लेकिन मट्टी के ऊपर हराम कर दिया है। आगे जो हदीस आ रही है वाज़ेह रहे कि ये बरखजी जिंदगी
है, जिसकी हकीकत को अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। हम इस पर ईमान रखते हैं, अहले बिद्दत की तरह ना ही इसका इनकार करते हैं और ना ही गुलब करते हैं। गुलब करना क्या है? झूठी बात कहना। झूठ कहना, हाँ जी, नहीं धोखा देना। नहीं नहीं, हाँ, नहीं, ग्लू करना के किसी की इग्नोर करना। तारीफ में इतना आगे बढ़ जाना कि अल्लाह ताला हाँ से जी, उसको आगे कर देना, तारीफ में आगे ज्यादा बढ़ जाना, करना, जाने कि ज्यादा करना। हाँ जी, बहुत ज्यादा कर देना कि एक तो वो बंदा जो है उसको मार देते हैं तारीफ करके। दूसरी क्या है? तारीफ, तारीफ किसी को ना क्या है, गुल्फ करते हैं तो तारीफ है ना। बहुत सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या गुल्फ किया, गुल्फ किया। ईसाइयों ने क्या गुल्फ किया? हजरत ईसा अलैहि इस्लाम के बारे में अल्लाह से ऊपर कर दिया, नाउजुबिल्लाह, खुदा ही बना डाला, खुदा का बेटा बना। जी आज मुसलमानों ने बहुत सारे गुल्फ कर रखे हैं कि अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा सकते हैं और मोहम्मद का पकड़ा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं हाँ जी सकता, जी, नाउजुबिल्लाह। पढ़ते हैं जी नाथ। तो अल्लाह ताला से नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं झोलियां भर के हम मांगते हैं। जी, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कोई खाली खाली हाथ नहीं आता, जो मांगा जाए वो मिलता है। पर बहुत सारा मांगते हैं, बहुत सारा कुछ कहते हैं। इसे गलब करके इसे दुनियावी जिंदगी की तरह साबित करते हैं। अंबिया के जिस्मों का महफूज होना अल्लाह ताला की तरफ से अपने बरगजीदा नबियों का एक एजाज ये भी है कि उनके जिस्म मिट्टी में नहीं मिलते, खा दफन के बाद कितनी ही तवील मुद्दत गुजर जाए। हदीस में हदीस में औस बिन औस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने नबियों के जिस्मों को खाना जमीन पर हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह। नबियों के जिस्मों को जमीन नहीं खा सकती, हमें जी खाएगी खाएगी। खाएगी बच्ची। आएगी। कहा जाता है वो रीढ़ की हड्डी का वो छोटा सा हिस्सा जो कि जैसे जोक की मानद होता है, छोटा सा वो रह जाएगा, इतना छोटा सा निशान रह जाएगा और उसी से फिर इंसान को दोबारा गोश्त पोस्त पहनाया जाएगा। मकाम मौत ही पर दफन होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी को वहीं दफन किया गया जहां उसकी मौत वाक़या हुई, यानी जिस जगह पे वो वफात पाए उसी जगह पे उनको दफन किया गया। सुभान अल्लाह। अब इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुजरा आयशा में दफन किया गया था, जहां आपकी वफात हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनने का शर्फ उसी हुजरा को हासिल हुआ था। क्योंकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती जा रही थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बीवियों को इकट्ठा करके उनसे इजाजत मांगी थी कि वो इजाजत दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास चले जाएं, जी सिर्फ उन्हीं के पास बाकी दिन गुजारे। तो उन्होंने सब ने खुशी खुशी इजाजत दे दी थी। मौत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको कुछ आ रहा है हकीकत सामने? जी जी न? किस तरह के वो लम्हात थे और जी, क्या हम कर रहे हैं आज। जी, गुज़श्ता सफ़ात में तमाम इंसानों की मौत और खसूसी तौर से अंबिया व रुsul की मौत पर दलाइल पेश किए जा चुके हैं। अब वो अपने से नहीं बता रहे, आपको क्या दे रहे हैं? कुरान और हदीस। पेश नज़र सत्रों में खातमुन अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के दलाइल पेश किए जा रहे हैं। कुरान करीम में बड़ी वजाहत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का ऐलान किया गया है। चनाचे अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, यकीनन खुद आपको भी मौत आएगी और बेशक ये सब भी मरने वाले हैं। कौन? मुशरिकीन मक्का। नीज फरमाया, व जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द फा इन मैं बड़ा करना थोड़ा सा मुझे नजर नहीं आ रहा अच्छी तरह।
फ़ाइम्मित्ता फ़ाहुमुल खालिदून अंबिया 34। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी, क्या अगर आप मर गए तो वो हमेशा रह जाएंगे, हमेशा के लिए रह जाएंगे, यानी कि उनको भी मौत आएगी। तो इससे क्या पता चलता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। ये याद रखें, जब भी आयते सूरत आल इमरान की ये पढ़े 144, क्या है इसका? वमा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफा इम्मातु औ कुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैया वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, उनसे पहले बहुत से रसूल बहुत से रसूल हो चुके हैं। क्या अगर उनकी मौत हो जाए या कत्ल कर दिए जाए तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई भी फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज अल्लाह ताला कुछ ना बिगाड़ सकेगा, कुछ ना बिगाड़ेगा उनका। अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का वो कुछ ना बिगाड़ सकेगा, यानी कि बंदा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा अल्लाह जी ताला। अगर दायमी जिंदगी किसी का मुकद्दर होती तो अंबिया व रसूल उसके सबसे ज्यादा हकदार थे। अगर किसी नबी को मौत से रस्त दस्तगारी होती तो जनी के वो छूट होती तो सैयदुल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर जिंदा रहते। लेकिन मौत वो हकीकत है जिस पर अंबिया सबसे पहले ईमान लाए हैं। हम भी ईमान लाए हैं, अल्लाह हम भी ईमान लाते हैं और इस हुक्म इलाही के सामने अपना सर न्या खम करते हैं। हम भी अल्लाह ताला करते हैं, बेशक ये सच है बिल्कुल। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के खलील, उसके चीदा व बरगजीदा और मुंतखब मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह रसूल थे, बल्कि सारे नबियों और रसूलों के अंबिया इमाम पेशवा और सारे रसूलों के इमाम पेशवा और सरदार थे कायद व सरदार थे। जब उनकी मौत का वक्त आया तो उन्हें भी एक घड़ी की मोहलत न दी गई। उन्होंने मौत की, आपने मौत की सख्तियां बर्दाश्त की और फिर रफीक के आला से जा मिले, जैसा कि हम इसकी तफसीलात पीछे पढ़ चुके हैं ना। कुतुब अहादीस और सीरत की किताबों में भी आइंदा सफ़ात पर पेश कर रही हैं। मौत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक अकीदा सहाबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तमाम सहाबा और सहाबियात का ये अकीदा था कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी वो अपने इस अकीदा पर कायम रहे। चनाचे उसके बाद बेशुमार दलाइल हैं, इख्तिसार के साथ हम चंद दलाइल हस्बे ज़ैल हैं। जो मौत अभी मौत की ये आयत पढ़ी थी ना मैं कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए जा तो यही आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबे में अरशाद फरमाई थी, जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मान नहीं रहे थे, तलवार निकाल ली थी। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि उमर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने खड़े हुए, सदमा बहुत था लेकिन खड़े हुए और खुतबा अरशाद फरमाया। और ये आयत अरशाद फरमाई कि जो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं उसके बारे में, तो वो ये आयत सुनकर सब खामोश हो गए, सभी पर वो एक रिक्कत तारी हो गई। सभी को पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में मौजूद नहीं रहे उनके पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुबैर बिन मुतअम रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा आने का हुक्म दिया। उसने अर्ज किया, अगर मैं दोबारा आऊँ और आपको ना पाऊँ, गोया वो मौत की तरफ इशारा कर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे नहीं पाना तो अबू बकर के पास पाया तो अबू बकर के पास आना। बुखारी, यानी कि मैं ना हूं तो अबू बकर के पास आ जाना। इससे भी पता चलता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या मिलना था? खिलाफत, खलीफा उन्होंने बनना था।
اشارہ ملتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے اس حدیث کی شرح میں ایسی کئی روایات کا ذکر کیا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد الموت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، بے شک اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے، کیونکہ میں بنو طالب کے لوگوں کی موت کے وقت چہروں کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ بخاری۔ کس نے کہا تھا؟ صحابی نے، کہ بنو کون ہیں جی؟ بنو مطلب۔ مطلب بنو مطلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سارے ہاں جی، ہاں جی ساروں کی موت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانا۔ ہاں جی، گرانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دوشنبہ، سوموار کے دن۔ سوموار کس کو کہتے ہیں؟ پیر کو۔ پیر کو۔ ہاں جی، تو پیدا کس دن ہوئے تھے؟ پیر پیر کو۔ پیر کے دن پیر کو۔ اب ایک اور حقیقت سامنے آ گئی، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ جی، بہت ساری چیزیں میں پہلے بتانا شروع کر دی، لیکن یہ ہے کہ اب میں نے سوچا کہ میں اسی وقت بتاتی ہوں جب سامنے آئے آپ کے، ٹھیک ہے؟ تو پیر کے وقت پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن وفات ہوئی، لیکن تاریخ پیدائش کا اختلاف ہے۔ ہو سکتا ہے 12 ربیع الاول کو ہوئے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جشن ایسے منائے جائیں کہ غیر مسلم بھی دیکھیں تو ان کی روحیں بھی کانپ جائیں کہ اتنی بھوکی قوم ہے، اتنی قلت ہے اور یہ کر رہے ہیں کام، ہے نا؟ جی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے یہ پوچھا، جب تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 63 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث میں ان کا حق انہیں دیا جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بعد وارث کون تھی؟ فاطمہ۔ صرف حضرت فاطمہ رضی ہاں اللہ جی تعالیٰ عنہ ہی زندہ تھی جی نا، جی بچوں میں صرف وہی زندہ تھی، اور وہ جی بھی ان کو بھی خوشخبری ملی تھی موت کی۔ جی زندگی میں 6 مہینے صرف زندہ رہی تھی وہ۔ جی جی، تو انہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھی؟ اتھارٹی تھی۔ اب ہمارا کیونکہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ورثہ جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ بخاری میں مسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چلو ام ایمن کی زیارت کرتے ہیں۔ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیوں روتی ہو؟ یعنی پوچھا، سوال پوچھا، کیوں روتی ہو؟ اللہ کے پاس آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے بہت بہتر ہے۔ کہنے لگی، میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب وحی نہیں آئے گی، اب ہمیں گائیڈ نہیں کوئی کرنے والا رہے گا۔ سمجھ آئی بات؟ کبھی ہم نے ایسا کیا ہے فکر؟ نہیں وہ نہیں عورت رو رہی تھی، عورت فکر کر رہی تھی کہ اب وہی نہیں آئے گی، یہ کہہ کر انہوں نے ان دونوں کو بھی رلا دیا اور دونوں ان کے ساتھ رونے لگے۔ یہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں ہمیں۔ تو جہاں پر ہم رکتے ہیں اور ہم پھر کریں گے اسے نیکسٹ کلاس میں، بلکہ کل شروع کرنا چاہیے تھا انشاءاللہ، جہاں پر ہم روکتے ہیں، کیونکہ لمبا پھر
ज्यादा ठीक नहीं है इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अब चाहे लोग मस्जिदों में मनाएं, या घरों में मनाएं, या बाजारों में मनाएं, या महफिलों में मनाएं, आपने क्या करना है? मुझे इसका जवाब चाहिए। लेकिन नहीं, फिर मैं नहीं फोर्स आपने नहीं नहीं मनाना, जाना करती, बाजी। नहीं मैं मनानी फोर्स हम, नहीं करती, ये आपके ऊपर है। नहीं बाजी हम। दीन को लेना सही। अब मैंने कुरान की आयतें सामने आपके रख के सुनाई है, बताने जी लगती तो मैं जैसे बताना शुरू किया था मैं बताती रहती, जी, नहीं लेकिन बाजी आप हम। ना बनाते हैं और ना जाते हैं। कुरान और हदीस की हाँ आयत मौजूद है। बदकिस्मती की बात है कि हमारी तो मस्जिदों में ऐसे होता है, जी जी कुर्सियां सजाई जाती हैं, नाउजुबिल्लाह। हर जुम्मे को उठते हैं, खड़े होते हैं, सलात पढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, खड़े हो जाओ। यानी इतनी जहालत आ चुकी है और मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा फिरका ही सबसे ऊपर है। लेकिन ये है कि हमें किसी से क्या लेना देना, हम औरतों ने अपने आप को सीधा करना है और अपने बच्चों को, अपनी औलादों को सीधा करना है बस। किसी को कोई मान जाए तो उसको बता देना है, नहीं माने तो उनकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या वालेकुम हाल सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। जी कुदसिया बहन आप ठीक है? है? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तो आदत है कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं और माशाल्लाह। दरूद शरीफ और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा और सलात, सवाब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लेते हैं, ये भी लेना चाहिए साथ में। उस खास कर रबीउल अव्वल में एक एक हर रोज की सुन्नत भी लेते जाएं तो पूरे महीने में कितनी सुन्नतें ले सकते हैं हम, आदत में जी डालें। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना, दुआ जी पढ़कर छोड़ना, कपड़े पहनते हुए, बाहर जाते हुए की दुआ, अंदर आते हुए की दुआ, सुन्नत समझ कर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। टॉयलेट जी में आने जाने यानी हम रोजमर्रा के ही शुरू कर दें तो हमें बहुत सारा मिल जाएगा। लेकिन हम एक दिन में जश्न मना के सारा साल को जो कुछ करना चाहें करके बच सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बच सकते हम पेज नंबर 28 कर रहे हैं, ठीक है? जी याद रखें पेज नंबर 28। 28। तो इंशाल्लाह ताला हमें ये काम करने, और जो जिसको बता सकते हैं बताएं, आगाही दें, बता दें, इसी को भेज दें आगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूं कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को भेज दूं, इसी को ही आगे भेज दें। जी सिर नहीं, के ये 100% हर इंसान को कन्फर्म है कि हिजरी का आगाज़ जो है वो तब हुआ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने हिजरत की और हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जब हुई, वसाल जब हुआ, वो तो 100% कन्फर्म है कि 12 रबीउल अव्वल को, हम्म लेकिन पता का नहीं है। लेकिन ये वो लें, जी, फिर उसको लेते नहीं है ना, हाँ जी, लेते नहीं हैं, लेते लेकिन नहीं। हम अल्लाह ताला हदायत दे। अब जो करने वाले हैं वो किसको फॉलो करते हैं? ट्रेंड को। जी, बिल्कुल। ट्रेंड को। एक बंदा किसी मस्जिद में या किसी मदरसे में पढ़ा रहा है और उसका एक अपना एक अकीदा आ गया है कि उसने ये काम करने हैं और सभी को वही अकीदे पर ठोक रहा है। मैं आप लोगों को सही बात बता रही हूँ, आपकी मर्जी है आगे। हाँ, जी, मैं जो नसीहत जरूर करूंगी, नसीहत वसीयत भी जरूर करूंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जरूर पढ़ें और जी कुरान को तर्जमे और तफसीर के साथ जरूर पढ़ें, ताकि आप लोगों को ठीक पता चल जाए कि हकीकत क्या है और हम क्या करें। जी जरूर पढ़ें। अल्लाह ताला तौफीक दे। आगे आप लोगों की मर्जी है, आपने जश्न मनाना है, आपने शामिल होना है, आपने जो भी करना है कर। केक काटने हैं, वो जलसे जुलूस निकालने हैं, नातों की महफिलें बर्पा करनी। नातें पढ़ें, नात पढ़ना गुनाह नहीं है, लेकिन कौन सी नात गुनाह है? शिरक है, जिसमें शिरकिया जुमले हैं।
जिसमें शिरकिया जुमले पाए जाते हैं, जिसमें मदीने वाले से मांगा जाता है कि मदीने वाला हमें दे, जोलियां भर भर देता है मदीने वाला। किससे मांगना चाहिए? मदीने वाले के रब से। रब जी से, हाँ जी, मदीने अल्लाह वाले से। का रब जोलियां भर भर देता है। मदीने वाले इस शहर के रब से मांगा जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया शहर मक्का का रब, शहर मक्का के रब की इबादत की जाए। जी यानी कि खाना काबा की इबादत नहीं हम करते, किसकी करते हैं? हम उसके रब के की रब इबादत की करते हैं, खाना काबा के रब की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम व वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व अल्लाह बरकातहू। सुब्हाना ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, जो आमीन हमने कहा इसके ऊपर भी अमल दिए करने की और आमीन। आगे पहुंचाने की तौफीक दे, हक को हक और बातिल आमीन। को बातिल बताने की तौफीक दे हमें, आमीन सही आमीन। को गलत को निखार कराने की तौफीक दे हमें। आमीन सुम्मा आमीन। सुमा आमीन। वो मुझे आवाज़ नहीं आती।